Hello everyone, welcome back to my channel Knowledge Booster. I'm Ruchika Gehlot. I'm back with my fresh video on the fresh topic, that is basics of management and motivating factors, as well as with the fresh unit, that is resource management and consumer needs. And if you have not subscribed my channel, I would request you to please subscribe, like and share. And till my last video I had covered communication unit, and I had given you some basic tips of how to prepare for NET exam, or how you need to study for your NET exam. Okay, so in my this video I'll just start with the new unit as well as with the new topic, that is basics of management, approaches of management, as well as the starting of motivating factors. Okay, and in my next video that will be uploaded soon, so by my next video I'll be just covering motivating factors, or I'll just go on for this unit, okay, by these videos. So now let's begin with the topic. Resource management and consumer needs, basics of management and motivating factors. मैनेजमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू ग्रॉस एंड क्रैंडल, होम मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ डिसीजंस वेयर फैमिली रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड. ये सीरीज ऑफ डिसीजन है जहाँ पे फैमिली रिसोर्सेज यूटिलाइज होती हैं, एंड इट इज ऑल्सो अ मेंटल प्रोसेस इन विच वन प्लान्स, कंट्रोल्स एंड इवेलुएट्स द यूज ऑफ फैमिली रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू अचीव द गोल. एंड फैमिली इज अ बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, एंड इट इज अ साइंटिफिक प्रोसेस जहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन एंड कंट्रोलिंग आर एनालाइज्ड. Physical, mental, social, emotional and moral development of the family member is the primary goal of a family. ठीक है. हेनरी फ्यूल इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ मैनेजमेंट. इस पे क्वेश्चन आया है, एंड क्या क्वेश्चन आया है वो मैंने लास्ट में डिस्कस करा है. Then comes characteristics of management. इसकी क्या characteristics है? Management is a process. Yes, it is a continuous and ongoing process, and it is a valuable key to the successful achievement of the family goals as well as the individual goals. It is a human development. Yes, management leads to a human development. Management is a social process. A man is a social animal, and its socialization in the world begins at home. Okay, and every member in the family, they live together, they socialize, they share their love, affection and sacrifice and concern for each other. Okay, management is a group effect. Yes, it is a group effect because it involves 5 processes, that is planning, controlling, coordination, motivation, organization and so on. Achievement of goal. Individual as well as the family members, they have a goal, and achievement of individual goal as well as family goal is very important, and that too also in a proper direction. Okay, management is an invisible force. Okay, then yes, it is an invisible force in which improvise the ability, capability, efficiency, okay, and attitude of the family members, as well as management is reflected in the efficiency of housewives as well as management of the household. And management also teaches the family members to work in a cordial manner as well as with the team spirit, to work in a proper manner as well as with the team spirit. And it all the this invisible force introduces the family members to the family goals, methods of planning and controlling the work as well as daily activities. Management has an independent existence, yes, because family head, that is you can say the main family member, as well as the household manager, that is might be a mother, your sister, okay, it is, they too have an independent identities and independent role. Practical knowledge, intelligence, efficiency and capability are some of the attributes of the good management, and also for a good person as well as to work in a good manner. Management is essential at every stage of family life cycle. Family life cycle is a universal process, and managerial activity, ability and resource management. Managerial ability means how we can manage the things, and resource management, they are the basic necessity for any family life cycle. Management is universally accepted procedure. Yes, it is an universally accepted procedure. Misconceptions. It is not confined to completion of work, not confined to a leader, not inborn but acquired. Goal achievement is not only the target, because individual goal achievement is also a target in this, and it is a resource, not an end. Qualities of good homemaker.
होम मेकर जो घर को संभालती है या संभालता है, ठीक है, ही और शी शुड बी इंटेलिजेंट, इंथुजियाज्म मतलब बहुत एनर्जेटिक, इंथुजियास्टिक, सिंपैथेटिक बहुत कंसर्न होना चाहिए उसके अंदर, इमेजिनेशन उसकी थिंकिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर वो अपने फैमिली मेंबर्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सके, अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सके, ताकि जो घर है बहुत अच्छे से चले, उसके अंदर जो वर्क है फैमिली मेंबर्स का वो अच्छे से चले, वर्क एफिशिएंसी उसकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए वर्क करने की, सेल्फ कंट्रोल उसको अपने में एक कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो एग्रेसिव हो जाए कभी भी वो मतलब नॉर्मल हो जाए, नो, शी और ही शुड हैव अ सेल्फ कंट्रोल ऑन सेल्फ, ओके। एंड इकोनॉमी इन एक्सपेंडिचर या कोई भी जब खर्चा होता है उसमें उसका एक होना चाहिए कि भी कहाँ पे खर्च करना है कहाँ पे नहीं, तो इकोनॉमी का भी उसका काफी होना नॉलेज होना चाहिए। Then comes approaches to management. There are two approaches, scientific as well as administrative. Scientific, आप खुद ही देखते हो कि it emphasize the scientific study as well as work methods, ताकि जो productivity है individual worker की as well as organization की वो improve हो. Frederick Taylor, the father of scientific management, ठीक है, recommended that the application of scientific method to analyze work and to determine the methods to complete the task efficiency, and this idea of scientific management increases the productivity across industries as well as productivity inside the home also, because अगर proper working condition होगी and proper work method होगा तो automatically घर की भी efficiency बढ़ेगी, okay। Administrative approach is concerned with managing the total organization. एडमिनिस्ट्रेटिव आप खुद ही वर्ड समझ सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी स्कूल कॉलेज या कोई भी एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे वर्क हो रहा है तो उसके लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एंड हेनरी फॉर द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में। इसमें कभी कभार ये लोग क्या करते हैं, लीडिंग की जगह डायरेक्टिंग दे देते हैं, तो वन एंड द सेम थिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, ऑब्लिक डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, इस पे ये क्वेश्चन आया हुआ है। फ्योल्स 14 प्रिंसिपल, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, या फिर आप इसको मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट है डिवीजन ऑफ लेबर, प्रॉपर लेबर मतलब प्रॉपर काम का डिवीजन होना चाहिए। अथॉरिटी, दे शुड बी वन पर्सन हु हैंडल्स द कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिसिप्लिन, प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड, ईच एम्प्लॉय हैज वन एंड ओनली बॉस, एक बॉस होना चाहिए जो कि कमांड करे, जो कि आपको डायरेक्शन दे। सबऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, जितने भी एम्प्लॉय है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसका खुद का इंटरेस्ट भी होना चाहिए, खुद के गोल्स भी होने चाहिए, एज वेल एज उसके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स भी होने चाहिए। एंड उस एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दोनों गोल्स सेटिस्फाई करे, फुलफिल करे। रेन्यूमरेशन, एम्प्लॉय शुड रिसीव फेयर पेमेंट, ओके, फॉर सर्विसेज। ऐसा नहीं है कि उनसे काम ज्यादा कराया गया, पेमेंट उनको कम दी जा रही, नहीं, या फिर काम कम करा के पेमेंट ज्यादा दी जा रही, नहीं, जितना वो काम कर रहे हैं उतनी पेमेंट उनको मिलनी चाहिए। सेंट्रलाइजेशन, जो भी डिसीजंस हैं वो एम्प्लॉयज के हाथ में नहीं होके जो भी टॉप जो अथॉरिटी है या फिर कोई भी जो सेंटर में अथॉरिटी है उससे डिसीजन मिलने चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रॉपर एक डायरेक्शन मिलना चाहिए। एम्प्लॉय शुड फोकस ऑन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, एक प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए। स्केलर चेन, फॉर्मल चेन और यू कैन से लाइन ऑफ कमांड और लाइन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, दैट रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ओके। टॉप हाई अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी में रन होना चाहिए। ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर मिलना चाहिए, ठीक है, चाहे वो वर्क से रिलेटेड हो चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो। इक्विटी, मैं आपको इक्विटी एंड इक्वालिटी में डिफरेंस बताती हूँ। इक्वालिटी क्या होता है कि टू ट्रीट इक्वली, ओके, टू एवरीवन, ठीक है। और आई मस्ट से कि भाई आप सेम रिसोर्सेज इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट करें, दैट इज इक्वालिटी। इक्विटी क्या होता है कि नो डाउट आप सबको सेम रिसोर्सेज दो, लेकिन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पर्सन। अगर मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाऊं कि कोई भी एम्प्लॉय है सपोज, ठीक है, एंड गवर्नमेंट ने बोला है कि मैं हर एम्प्लॉय को 10,000 रुपीज हम देंगे, ठीक है। तो अब इक्वालिटी क्या कहता है कि आप हर एम्प्लॉय को 10,000 रुपये दो, ठीक है, चाहे वो उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत रिच हो चाहे उस पर्सन का फैमिली बैकग्राउंड पुअर ही क्यों ना हो, आप हर एम्प्लॉय को 10,000 दो, दैट इज इक्वालिटी। इक्विटी क्या हुआ
कि ठीक है गवर्नमेंट ने 10,000 रुपए दिए, आप सबको 10,000 रुपए दो, लेकिन अगर किसी का फैमिली बैकग्राउंड रिच है तो आप उसको 4,000 रुपीज दो, एंड अगर किसी का फैमिली बैकग्राउंड पुअर है तो आप उसको 6,000 दो. तो यू आर प्रोवाइडिंग द सेम रिसोर्सेज बट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पर्सन. दैट इज कॉल्ड इक्विटी. ठीक है, तो इक्विटी इज लाइक प्रोवाइडिंग द सेम रिसोर्सेज बट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पर्सन. Then comes stability and tenure of a personal, and which includes promote employee loyalty. उसकी loyalty को बढ़ावा देना चाहिए, as well as longevity मतलब long life. Initiative, कोई भी प्रोसेस को मतलब करने के लिए वो इनिशिएट होना चाहिए, एक स्टार्टअप मिलना चाहिए. एज पर डी कॉप्स विच प्रमोट यूनिटी इन स्ट्रेंथ, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है. देन कम्स मोटिवेटिंग फैक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट. 3 होते हैं मोटिवेटिंग फैक्टर्स में, वैल्यूज, गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स. आज हम लोग वैल्यूज पढ़ेंगे, दैट इज ऑल्सो बेसिक. वैल्यूज होते क्या है? एनीथिंग डिजायर्ड और चूजन बाय समवन, समटाइम्स क्लासिफाई ह्यूमन वैल्यूज. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज आर इंडिविजुअलिस्टिक मतलब इंडिविजुअल है, डायरेक्टिव इन नेचर प्रॉपर डायरेक्शन है, डेवलप पर्सनैलिटी, इंसान की पर्सनैलिटी, इंसान की बिहेवियर को डेवलप करती है. ठीक है, पेशेंट, फुल desires, promote, provide satisfaction. Values are patient, values fulfill desires as well as they provide satisfaction. They are based on the facts. ठीक है, values are thing, thought or an idea which originates goal. Okay, reflective of our culture. Yes, it reflects culture, and intensity of value are different for every individual. Thank you. I hope you liked my short video on this topic, okay, short lecture. And if you have any query regarding this, you can just mail me out with the email ID gehlot.ruchikakb@gmail.com, or you can just write it down either in the comment box. Do ask your queries, feel free to ask anything regarding the topics, regarding to videos, and just go on for your previous year's questions, okay. As जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं अभी मेरे पास काफ़ी लोगों के सजेशंस आए हैं दैट आई शुड नीड टू प्रोवाइड सम क्वेश्चंस व्हाट ऑल हैड कवर्ड इन द प्रीवियस ईयर्स. तो जैसे जैसे टॉपिक कवर होगा उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगी मेरे वीडियो के लास्ट में. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच माई वीडियो टिल द एंड. एंड जो भी टॉपिक आज मैं कवर करूँगी उससे रिलेटेड जितने भी पिछले साल में क्वेश्चंस आए हैं वो भी मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ. सो प्लीज़ watch my video till the end. Don't forget to share, subscribe, so that other students like you can also get in touch with my videos and they can also get notes for the same. And if you have any query, feel free to ask. Don't hesitate, I'm there 24 hours to solve your queries, to solve your problems. You just need to work hard and study hard, okay. ओके, सो मैं जो आज मैंने टॉपिक कवर कराया है दैट इज़ बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड मोटिवेटिंग फैक्टर्स. उसमें एक क्वेश्चन आया है जो कि मैं आपके खुद के सामने बताऊं तो ये 2017 का है, ओके, नेट का. तो इसमें क्वेश्चन आया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया है? दैट इज हेनरी फ्योल इज द आंसर, ओके. तो इस पे क्वेश्चन आया है. एंड एक क्वेश्चन आया है फ्योल्स के जो 14th प्रिंसिपल हैं उस पे क्वेश्चन आया है दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट इन यूनियन देयर इज अ स्ट्रेंथ इज कॉल्ड दैट इज एज पर डी कॉप्स. ठीक है, तो ये एक जो है ये मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ जुलाई 2018 का. एंड ये 9th क्वेश्चन है, तो अगर आप ये आया है. एंड एक मैंने आपको कम्युनिकेशन में टॉपिक पढ़ाया था मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें मैंने लैंड्समैन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस किया था. उसमें मैंने आपको बताया था कि लैंड्समैन ने क्या किया था कि भाई हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू हुम एंड विद व्हाट इफेक्ट. ठीक है, अगर आपने मॉडल पढ़ा होगा तो ये एक मैंने लैंड्समैन मॉडल बताया था जिसपे क्वेश्चन आया था. सो ये देखिए अभी रिसेंटली जुलाई 18 में ही ये क्वेश्चन आया है. अगर आप इसको देख सकते हो तो इसमें ये पूछा गया है, मैथ्स द कॉलम है. ठीक है, आप टैली भी कर सकते हो. जुलाई 2018 का क्वेश्चन नंबर 94 है ये. ठीक है, तो इन्होंने इसमें क्या किया है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दिया हुआ है.
ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बाकी के 10% क्वेश्चंस आते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके जो पिछले साल के ईयर्स होते हैं उसमें से भी आते हैं, नहीं तो जो आपने पढ़ा होता है उसमें से आते हैं, राइट। तो ये देखिए, जैसे लिस्ट 1 में दिया हुआ है हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू हुम विद व्हाट इफेक्ट विद द ABCDE, एंड उसके ऑपोजिशन में दे रखा है कंटेंट रिसर्च, मीडियम रिसर्च, ऑडियंस रिसर्च, कंट्रोल रिसर्च, इफेक्ट रिसर्च एंड फ्लेक्सिबिलिटी रिसर्च। नाउ अब आप खुद भी इस चीज़ को जज कर सकते हैं कि इन विच चैनल, तो चैनल मतलब मीडियम, तो ये कहाँ पे लिंक करेगा, मीडियम रिसर्च पे, ठीक है। अच्छा, इन्होंने ये ऑप्शन भी सेम दे रखा है विद व्हाट इफेक्ट, तो इफेक्ट से आ गया इफेक्ट रिसर्च, ओके, ये भी इन्होंने सेम दे रखा है। अच्छा, हु सेज, अब आप हु सेज में कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई किसने कहा है, ठीक है, तो अभी देख लो टू हुम, टू हुम में आप किसको देखोगे, ऑडियंस को देखोगे, बिकॉज हम अगर कोई भी अगर टू हुम देखें तो वो रिसीवर या ऑडियंस होगा, हु सेज मतलब सेंडर, है ना, तो टू हुम हो गया तो वो क्या आ गया, ऑडियंस, तो डी का ऑप्शन है थर्ड, हाँ, ऑडियंस रिसर्च। तो यहाँ पे ये क्या होता है, एक ऑप्शन जो है डी, इसमें डी का थर्ड है, तो ये आपका आंसर सही हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कभी कभार ऐसे कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस चीज़ को करिए, एंड ये जैसे मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है ऐसे मैं और भी क्वेश्चन डिस्कस करूँगी, ठीक है, तो आप इनको देखिए, एंड ये मेरा क्वेश्चन था, और जो भी मैंने क्वेश्चंस था इस टॉपिक से जो आज मैंने पढ़ाया है वो मैंने डिस्कस कर दिया है, जैसे जैसे मैं और पढ़ाती रहूँगी वैसे वैसे डिस्कस करती रहूँगी, सो दैट आपको आइडिया लगता जाएगा कि भाई कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ओके।